Hello students, welcome back to the site of resonance. In the previous lecture, what we did was we have studied about the pressure. In pressure, we have seen by increasing the force how pressure changes, by decreasing the force how pressure changes, by increasing the area how pressure changes, and by decreasing the area how pressure changes. If we are increasing and decreasing area as well as force at the same time, means simultaneously, then how pressure is changing. Then we have studied a new topic which is known as atmospheric pressure. What we have studied was atmospheric pressure. atmospheric pressure की हमने बात करी थी और atmospheric pressure में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, it has some weight. Due to that weight, it is exerting a pressure on the surface of the earth and on the all the human beings, animals and plants living on earth. So it is exerting some pressure. That pressure is known as atmospheric pressure, and at sea level the value of atmospheric pressure was coming out to be 101,325 pascals. That we have calculated. We have with the help of instrument we have taken out that value of atmospheric pressure at sea level, and it came out to be 101,325 pascals. Then we have seen an experiment by which we have proved that that atmosphere exerts some pressure, and that pressure is known as atmospheric pressure. Now today we will going to start that how to measure atmospheric pressure. जो हमने measure करा था sea level पे जो आ रहा था 101,325, how we will going to measure that atmospheric pressure. So let's begin. So we are talking about atmospheric pressure. In atmospheric pressure, we are dealing now with the measurement of atmospheric pressure. Measurement of atmospheric pressure. Now let us see how to measure atmospheric pressure. There is an instrument which is known as barometer. Barometer. Okay, this is the instrument that we use to measure atmospheric pressure. This is an instrument that we use to measure atmospheric pressure. The name of the instrument is barometer. Now what is a barometer? In barometer we have a tube. So this is a tube that we are having in barometer. Okay. We have a tube in barometer like this. This is a tube that we have in barometer. This tube is closed at one end. So this tube is like this, closed at one end. Okay, and it is open at the other. And this tube is filled with a liquid. This tube is filled with a liquid, and the liquid by which it is filled is known as mercury. It is a silverish color, shiny liquid that we use in this tube. This tube is filled with mercury. It is closed at one end and it is open at one end. Then we have a trough. In trough, this is a trough that we are having. We have a trough. This is a trough. In trough also we have mercury filled. So this is mercury filled up in a trough. This is the symbol, chemical symbol of mercury, or chemical formula of mercury. So we are having a trough in which there is a mercury, and we have a tube which is filled with mercury. Now what I will going to do to make this instrument, I will going to invert this tube into this trough. I will going to invert this tube into this
trough, and the apparatus will going to look somewhat like this. So the apparatus will going to look somewhat like this. Okay, this mercury will going to come down a little bit into the trough, and you will going to get this thing. Now this combination of the tube and the trough is known as barometer. This is known as barometer. See what we have done, we have taken a tube which is closed at one end and open at other. We have filled this tube with mercury, which is a silverish color liquid that you have seen in thermometer also. There is a trough, we have filled this trough with also mercury. Now what I have done, I have taken this tube and I have inverted this tube into this trough, making somewhat things like this. Now the liquid, that is the mercury in this tube, will going to come into trough, but it will going to come in some amount only, and there will be a height left in trough of the mercury. On this tube there are markings. On this tube there are markings, and these markings are in form of length. So these markings are in mm. These markings are in mm. Okay, millimeter. So this will going to stop when we are calculating at sea level. It will going to stop at 760 mm. मतलब ये जो लिक्विड कितना नीचे आएगा, 760 mm तक नीचे आएगा. कहाँ पर? एट सी लेवल. अब ये यहाँ आकर रुका क्यों? पहली बात तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर क्यों नहीं आया, ये यहाँ पर आकर रुक क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर लग रहा है प्रेशर. यहाँ पर क्या लग रहा है? इस मरकरी पे जो ट्रफ में प्रेशर, जिसको मैं बोल रहा हूँ PATM. क्या बोल रहा हूँ अपन? PATM. तो प्रेशर लग रहा है कहाँ पर? इस लिक्विड पे जो कि ट्रफ के अंदर है. और कौन सा लिक्विड है? मरकरी. जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड नीचे नहीं आ रहा. जितना प्रेशर यहाँ पर है, फ्री सरफेस पे है, उतना ही प्रेशर सेम हाइट पर यहाँ पर भी होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पर प्रेशर कौन लगाएगा? ये लिक्विड का कॉलम. यहाँ पे प्रेशर कौन लगाएगा? ये लिक्विड जो है, इसका वेट यहाँ पर क्या लगा रहा होगा? प्रेशर. ये किसके बराबर होना चाहिए? PATM के बराबर. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर अलग हुआ तो ये लिक्विड और फ्लो करता, क्योंकि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. फ्लूइड्स हमेशा फ्लो करते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ. अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल नहीं होते तो ये लिक्विड और फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक ये प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता. तो आपने देखा इतना लिक्विड फ्लो कर गया किसमें? ट्रफ में. क्यों कर गया? ताकि यहाँ और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाए? बराबर. यहाँ का प्रेशर कम हुआ और किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया. इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है, कोई पॉइंट है A. यहाँ जो प्रेशर है वो किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. और यहाँ जो प्रेशर है वो ये लिक्विड कॉलम लगा रहा है. यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है? ये लिक्विड का कॉलम. इसका वेट यहाँ पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है. इसका वेट मतलब इसका फोर्स जो नीचे लग रहा है वो यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है. किसके बराबर होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए. तो जो मेरे पास यहाँ रीडिंग आई वो आई 760 mm. मतलब यहाँ पर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg है. कितना है यहाँ पर प्रेशर? 760 mm ऑफ Hg. और यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पर है, जो कि है PATM. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर मेरे पास आ गया 760 mm ऑफ Hg. 760 mm ऑफ Hg. अब इसका मतलब समझो, 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या? mm किसकी यूनिट है? लेंथ की. लेकिन सर आप तो प्रेशर की यूनिट बता रहे हो. mm प्रेशर की यूनिट नहीं है बच्चों, लेंथ की यूनिट है. इसका कन्वर्जन है. 760 mm लेंथ का फ्लूइड, 760 mm लेंथ का फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड? Hg. मतलब मरकरी का जो वेट, 760 mm लेंथ के मरकरी का जो वेट प्रेशर लगाता है उसको अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे. कहाँ पर? सी लेवल पर. मतलब हमारे पास 4 यूनिट बन चुकी है अभी तक प्रेशर की. पहली तो SI यूनिट, दैट इज पास्कल. सेकंड कौन सी यूनिट है बच्चों? CGS यूनिट है, दैट इज बैरी. थर्ड इज दी
प्रैक्टिकल यूनिट 1 ATM 101.325 पास्कल। और फोर्थ यूनिट ये आ गई जो कि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ 760 mm ऑफ Hg 1 ATM के बराबर होता है, P ATM के बराबर होता है सी लेवल पर। हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर मरकरी भरते हैं, इसको एक ट्रफ के अंदर उल्टा कर देते हैं, इसमें मरकरी भरा हुआ है, लिक्विड नीचे आएगा और फिर रुक जाएगा। रुकेगा क्यों? क्योंकि यहाँ और यहाँ प्रेशर बराबर हो गया। यहाँ प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ जो प्रेशर है वो ये लिक्विड लगा रहा होगा। तो हम यहाँ पे रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो रीडिंग है 760, मतलब 760 मिलीमीटर की लेंथ का मरकरी जो प्रेशर लगाता है वो कितना होता है? 1 ATM के बराबर होता है। अगर मैं इसको कहीं और ले जाऊंगा सी लेवल से तो हो सकता है लिक्विड और नीचे आ जाए या लिक्विड ऊपर चल जाए, डिपेंड करता है लिक्विड नीचे आ जाए या ऊपर चल जाए। तो अगर वो नीचे ऊपर आएगा तो यहाँ रीडिंग भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो प्रेशर वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रेशर एटमॉस्फेयर का चेंज कैसे हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं कैसे मेजर में करता हूँ प्रेशर को? बैरोमीटर से। किससे मेजर करता हूँ? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? इन्वर्टेड ट्यूब होती है दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट द अदर एंड देयर इज अ ट्रफ इन विच मरकरी इज फिल्ड। इस पे ऐसे मार्किंग रहती है और मैं मार्किंग से नोट कर लेता हूँ क्या रीडिंग आई है। तो जो सी लेवल पे रीडिंग आती है वो कितनी आती है? 760 mm आती है। अगर आप सी लेवल से कहीं और जाएंगे तो रीडिंग चेंज हो जाएगी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। ये यहाँ से प्रेशर लगा रहा है, इसकी वजह से ये यहाँ पर क्या है? राइज्ड है। अगर ये प्रेशर नहीं होता तो पूरा का पूरा कहाँ आ जाता? नीचे आ जाता। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखते हैं। वी विल गोइंग टू सी वेरिएशन ऑफ प्रेशर with altitude। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101.325 पास्कल या फिर 760 mm ऑफ Hg। कहाँ पर? सी लेवल पर। 760 mm ऑफ Hg की रीडिंग कैसे लेते हैं? बैरोमीटर से लेते हैं। इतनी बात मुझे पता होनी चाहिए। बैरोमीटर के अंदर जो लेंथ आती है कॉलम की, मैं उसी के टर्म्स में प्रेशर को लिख देता हूँ। अगर यहाँ Hg की जगह मैं वाटर लेता तो 10 मीटर आती। कितनी आती? 10 मीटर ऑफ H2O, 10 मीटर ऑफ वाटर। दिस इज 760 mm ऑफ मरकरी। ओके, अब विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अगर मैं अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे जा रहा हूँ, अगर मैं अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे जा रहा हूँ तो प्रेशर कैसे चेंज होएगा? जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होएगा, जैसे जैसे क्या इंक्रीज होएगा? एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होएगा बच्चों? प्रेशर क्या होएगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा अब आप देखिए। मान लीजिए ये सी लेवल है, मान लीजिए ये क्या है अपना? सी लेवल है, और मैं यहाँ किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ गया हूँ। मैं यहाँ किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ गया हूँ, ये कोई माउंटेन है। ओके, और मैं यहाँ चढ़ गया हूँ। सी, हम एक एटमॉस्फेयर में सबमर्ज्ड है, मतलब ये मेरे पास पूरा एटमॉस्फेयर है। एयर है ये, क्या ये? एयर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सी लेवल पर इतनी हाइट थी एटमॉस्फेयर की। कितनी हाइट थी? इतनी हाइट थी। तो इतनी हाइट का वेट ज़्यादा होगा, इतनी हाइट का वेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं माउंटेन पे चढ़ गया तो मेरे पास जो हाइट बची वो इतनी बची। मेरे ऊपर जो वेट है एयर का वो कितना है? केवल इतने से एयर का वेट है। तो यहाँ अगर वेट कम हो गया तो मेरे पास यहाँ जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया है? कम हो गया है, क्योंकि जो एयर है ऊपर मेरे वो कम हो गई। यहाँ तो एयर इतनी सारी थी ऊपर, यहाँ क्या हो गई? एयर कम हो गई। एयर कम हो गई तो उसका वेट कम हो गया, वेट कम हो गया तो फोर्स कम हो गया, और फोर्स कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया। अगर मैं हाइट पे जा रहा हूँ तो प्रेशर क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। और अगर मैं सी लेवल पर हूँ तो प्रेशर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरे ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक कॉलम की हाइट है वो सी लेवल पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया तो मेरे ऊपर की जो एटमॉस्फेयर की हाइट, कॉलम की हाइट है, वो क्या हो गई? कम हो गई। अब वो हाइट कम हो गई तो उसका वेट कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ऑफ मैटर ही कम हो गया, मास कम हो गया उसका। तो जैसे ही वेट कम होएगा तो मेरा प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। इसलिए जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है इन ब्रीथिंग। दे स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड ईयर्स।
अभी पढ़ेंगे वो ब्लीडिंग वगैरह क्यों हो रही है, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए जैसे जैसे हाइट ऊपर हो रही है, मतलब आप सी लेवल से ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। तो ये जो 760 mm ऑफ एच आपको सी लेवल पे दिखा रहा है, ये कम हो जाएगा कब, जब आप इस बैरोमीटर को कहाँ ले जाओगे, माउंटेन पे ले जाओगे। माउंट एवरेस्ट पर अगर आप इस बैरोमीटर को ले गए तो 760 से बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो ये 760 mm ऑफ एच कहाँ पर आया है, अपना सी लेवल पर आया है, समुद्र के लेवल पर आया है। लेकिन मैं किसी हाइट पे जाऊंगा तो 760 mm नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट के साथ विद एल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस, विद एल्टीट्यूड इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। ये बात भी मेरे समझ में आ गई कि अगर मैं किसी हाइट पर जाऊंगा सी लेवल से ऊपर तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Now we will going to see atmospheric pressure and human beings. Atmospheric pressure and human beings. See, in human beings, we know that human beings are made up of, organisms are made up of cells. किसके बने होते हैं हम, सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स के अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है। क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड। अब वो लिक्विड क्या करता है, प्रेशर लगाता है। हमारे अंदर ब्लड भी फ्लो होता है हमारी वेन्स और आर्टरीज में। तो जो वेन्स और आर्टरीज, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वेन्स और आर्टरीज पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, फ्लूइड है, और वो फ्लूइड क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब एटमॉस्फेयर भी क्या लगा रहा है हम पर, प्रेशर लगा रहा है। अब आप बातों को समझना, हो क्या रहा है, हमारे अंदर जो सेल्स और ब्लड वेन्स और आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है बाहर की तरफ, और जो हमारे बाहर एटमॉस्फेयर है वो हम पर प्रेशर लगा रहा है। ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बट सडनली अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दूं, मतलब यहाँ से एटमॉस्फेयर हटा दूं, अगर एटमॉस्फेयर हटा दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैंने एटमॉस्फेयर हटा दिया तो बाहर का प्रेशर जीरो हो जाएगा, मेरे अंदर क्या रहेगा, ब्लड जो प्रेशर लगा रहा है वो रहेगा, सेल्स के अंदर जो लिक्विड है वो भी प्रेशर लगा रहा है, वाटर है मैक्सिमम, वो भी प्रेशर लगा रहा है, वो भी रहेगा। तो वो क्या होएगा, वो रप्चर होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। तो मेरे अंदर का ब्लड ड्यू टू इट्स प्रेशर इट विल गोइंग टू कम आउट। मेरी वेन्स और आर्टरीज रप्चर हो जाएगी और मेरा ब्लड बाहर आ जाएगा, आई विल बर्स्ट आउट, माई सेल्स विल गोइंग टू बर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली reason that when we go to space, astronauts go to space, they have a specially designed suit. वो एक बहुत ही स्पेशली डिज़ाइंड सूट पहनकर जाते हैं। वो इसलिए पहनते हैं, उसके अंदर प्रेशर कंट्रोल रखते हैं। क्या कंट्रोल रखते हैं, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना प्रेशर उस सूट के अंदर क्रिएटेड रहता है, ताकि आपकी ब्लड वेन्स आर्टरीज सेल्स सब सही सलामत रहे। दे शुड नॉट रप्चर एंड द फ्लूइड शुड नॉट कम आउट फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी एक तरीके से क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, जीरो। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ड्यू टू दोज फ्लूइड्स दैट इज ब्लड एंड वाटर, देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर विच हैज बीन जनरेटेड इनटू योर बॉडी। ब्लड प्रेशर आपने नाम सुना ही होगा, वो ब्लड का प्रेशर है जो आपकी बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज में जनरेट हो रहा है। वो बाहर के प्रेशर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। जैसे ही बाहर का प्रेशर हट जाएगा तो ये प्रेशर की वजह से अंदर बॉडी का हाई प्रेशर हो जाएगा, बाहर प्रेशर ही नहीं है, लो प्रेशर, तो फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बर्स्ट होकर बाहर आ जाएगा। दैट इज वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है बहुत जनों के साथ, दे स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। क्यों, बिकॉज नोज की जो आर्टरीज वेन्स है वो बहुत, दे आर वेरी सेंसिटिव। क्या होता है, जैसे आप वहाँ जाते हैं तो प्रेशर हो रहा है कम, और अंदर का ब्लड प्रेशर आपका क्या हो रहा है, उतना ही है जितना सी लेवल पर है। अब वो ब्लड प्रेशर उतना है, लेकिन बाहर का प्रेशर हो गया कम, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम, तो अंदर का ब्लड क्या चाह रहा है, कोशिश कर रहा है बाहर आने की। तो वो बाहर कैसे आएगा, और रप्चर कर देगा आपकी नोज़ की वेन्स या आर्टरीज को, और वो
फ्लो होकर आपके नोज़ में से बाहर निकलने लग जाएगा ब्लड। इसकी वजह से जब आप माउंटेन्स पे जाते हो तो बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, दे स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड ईयर्स, क्योंकि यहाँ की आर्टरीज और वेन्स दे आर वीक। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, there is also problem with some old people and with some new generation also, that they have problem of breathing की problem होती है when they start climbing up a mountain। वो breathing की problem भी इसलिए होती है because the atmospheric pressure becomes less। अगर बाहर का प्रेशर कम हो रहा है तो बाहर से अंदर आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर बाहर का प्रेशर हल्का सा जाता है तो आप बहुत इजीली अपने अंदर इनटेक कर सकते हैं, किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन क्या एक तरीके की गैस है और गैस क्या होती है, फ्लूइड। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो बहुत इजीली फ्लो कर जाती है। लेकिन जब आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, बाहर का प्रेशर हो रहा है कम, तो वो जो इनटेक करना है आपको, उसमें आपको आने लग जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि वहाँ प्रेशर कम होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। योर पल्स, दैट इज दाल, वो बहुत आसानी से गलती नहीं है, सीजती नहीं है। क्यों? इट डज नॉट गेट कुकड वेरी फास्ट। क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर कम होता है ना बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विद डिक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जो पानी है जिसके अंदर आप दाल पका रहे हो, द वाटर इन विच यू आर कुकिंग योर पल्स, वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बॉयल हो जाएगा। वो 100 डिग्री पे बॉयल होने की जगह कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर पे ही पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लग जाएगा, आपकी पल्स ढंग से कुक नहीं हो पाएगी। दैट इज़ वाई वी यूज्ड जनरली प्रेशर कुकर्स। प्रेशर कुकर्स क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया पानी का, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल गोइंग टू स्टार्ट बॉइलिंग एट समवॉट ग्रेटर देन 100 डिग्री। तो अच्छा खासा टेम्परेचर मिल जाएगा, दाल बहुत आसानी से आपकी पक जाएगी। ओके, these are the some practical application of atmospheric pressure in human beings। एल्टीट्यूड की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे ये भी समझ में आ गया। एल्टीट्यूड बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमन बींग्स का क्या रिलेशन है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अब हम देखते हैं आगे, let us talk about hovercraft. What is hovercraft? What is hovercraft? Hovercraft is a vehicle which can go in water also and it can run on land also. It is a special type of vehicle which can run on land also and it can run in water also. So what happens in hovercraft? Hovercraft creates air cushion below it. It creates an air cushion below it. तो होवरक्राफ्ट अपने नीचे क्या बना लेता है, एयर कुशन बनाता है। इसके वजह से प्रेशर लगाकर बिना टच हुए लैंड को चलता है। सेम थिंग इट डज इन वाटर ऑल्सो, दैट इट क्रिएट्स एन एयर कुशन बिलो इट। हवा देता है नीचे, तो उससे क्या होता है, प्रेशर लगता है। उस प्रेशर की वजह से हल्का सा राइज करता है, विदाउट गेटिंग टच विद लैंड एंड वाटर इट मूव्स। दिस इज व्हाट हैपेंस इन होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट के अंदर ये होता है। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं हम, बैरोमीटर में एक ट्यूब लेते हैं, इसमें मरकरी भरा रहता है। मरकरी एक सिल्वरिश कलर का लिक्विड है जो आपने थर्मामीटर में भी देखा। और एक ट्रफ लेते हैं, ट्रफ के अंदर भी क्या रहता है, मरकरी। इस ट्यूब को मैं ट्रफ के अंदर इन्वर्ट कर लूँगा तो कुछ मरकरी किस में चल जाएगा, ट्रफ में चल जाएगा, लेकिन कुछ मरकरी इस ट्यूब में रह जाएगा सर्टेन लेंथ तक। यहाँ पे मेरे पास रीडिंग के लिए स्केल रहेगा और मैं रीड कर लूँगा। सी लेवल पे जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 760 mm आएगी। यहाँ पर mm में स्केल रहता है, किस में स्केल रहता है, mm में। तो सी लेवल पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा 760 mm ऑफ जो भी लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या लिक्विड रहता है, बैरोमीटर में जनरली Hg रहता है, दैट इज मरकरी। तो 760 mm ऑफ मरकरी इक्वल्स टू प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। मेरे पास ये पता चल गया। अच्छा, ये यहाँ पर रुक क्यों गया, क्योंकि यहाँ से लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे जैसे ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो कॉलम है, ये यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहा है वो किसके बराबर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस होता है तो लिक्विड फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर।
इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी एटीएम के बराबर है, और वो कौन लगा रहा है, ये मरकरी। तो 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm की लेंथ मरकरी की जो प्रेशर लगाती है वो किसके बराबर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है सी लेवल पर। ये बैरोमीटर हो गया, इससे हमने मेजर कर लिया एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है। अब अगर मैं अल्टीट्यूड चेंज करता हूँ, मतलब हाइट चेंज करता हूँ, तो प्रेशर कैसे वेरी करता है। व्हेन आई इंक्रीज हाइट प्रेशर डिक्रीजेज, क्योंकि जो एयर कॉलम की हाइट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एयर कॉलम की हाइट डिक्रीज हो गई तो वेट कम हो गया, वेट कम हो गया तो मेरे पास प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, किसी एल्टीट्यूड पे चल जाऊंगा माउंटेन पे तो प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमन बींग्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड हमारी बॉडी में क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस प्रेशर को बैलेंस नहीं करेगा तो हमारे अंदर के सेल्स रप्चर हो जाएंगे, हमारे अंदर की ब्लड वेन्स एंड आर्टरीज रप्चर हो जाएगी और अंदर से ब्लड और वाटर बाहर आ जाएगा, मीन्स आवर बॉडी विल गोइंग टू बर्स्ट। होवरक्राफ्ट हमने देखा, होवरक्राफ्ट इज अ व्हीकल विच रन्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ये क्या करता है, अपने नीचे के एयर कुशन बनाता है, और एयर कुशन बनाने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पर, थोड़ा सा राइज कर जाता है, तो बिना टच हुए वो लैंड और वाटर पे मूव कर सकता है। दैट इज अ होवरक्राफ्ट। ओके, so thank you for today. We will going to start the next topic in our next lecture.